My name is Nandini, and I want to tell that I had attended this club only for 2 months. And when I was in this club, and I used to think that only 2 hours I'm utilizing by giving tests, and rest of the time I'm wasting. I'm really telling that. But when I went to Manipal, even when I gave interview, I realized that how much the second session helped me. Because when I entered the interview room, I was not hesitated. I was so cool because I had already given 2 or 3 GD and 2 or 3 presentations in the club. So I was quite confident, and I went inside and I gave interview, and I was confident I'll be selected. So I want to tell that attend the second session regularly, and never think that you are wasting time. It is really very helpful. And Next, Hello everybody, I am Kshitij. As mentioned by my previous colleagues, they told that the second session is very important. I would like to stress upon that. Yes, the second session is very important, and especially the extempore part and the interview. When you will go to the interview room, you won't be judged on your written marks that much, but your body language, your confidence will be judged on that. So second session is really important, and extempore and your presentations will help you in the 9 months that you'll be experiencing in Manipal, because they'll be giving you like only 2 minutes you'll be getting for any topic to prepare upon, and then you have to speak impromptu on that. So that is very important. If you don't have confidence and presence of mind, you won't be able to speak up. So confidence is very important, and yes, as mentioned by my earlier employee, you will enjoy your 9 months. You'll feel a bit tortured, but then it's okay, because here in Alliance Club also, you feel that yes, the second session is a bit torturous for you, or a bit cumbersome for you, but then you have an idea that yeah, this is going to continue in the next 9 months. So all the best to all the upcoming employees. Thank you. Good morning, all of you. My name is Preeti. Good morning, all of you. My name is Preeti. अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जब क्लब में आते हैं तो आपके अंदर का हेजिटेशन कम होता है, और सबसे बड़ी बात होती है आपके सक्सेस के लिए यही कि आपका हेजिटेशन खत्म हो जाता है। जब आप कहीं भी जाते हो, आपके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको दिखा नहीं सकते हो। लेकिन क्लब में जैसे ही आप आते हो, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है वो सामने आता है, और ये आपको आगे जाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे अंदर पोटेंशियल था, लेकिन मैं उसको कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं जैसे ही क्लब में आई, मेरा रजिस्ट्रेशन भी खत्म हुआ, और ये मुझे मणिपाल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। इवन वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही होता है BACM, जिसमें आपको बस यही सब सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन बेटर वे। So this is a very helpful in the club in second section. Already told that Alankita and Kshitij, so it is a very helpful. Hello everyone, my name is Nehat, and what I learned from club which helped me there in Manipal is discipline. Right? Is discipline. hello, please. There you will be totally loaded with works, and every time you will be busy. So you need to be disciplined to complete all the works there. So what I learned here and what helped me there was discipline, and obviously the second session is very helpful, no doubt in that. But discipline also helped us a lot. hello everyone. I'm Priyanka, and जैसे कि everyone is not going to be in Bank of Baroda only, so I'll speak in general that what you should do to get into a bank and all. In my opinion, being disciplined is the first thing. In the club also, the main factor was to be disciplined, do everything according to the sessions as it was allotted. So having a disciplined lifestyle is most important. First of all, do the practice of written session regularly, and the things which are done in club like second session, the extempore presentation, that we should take seriously so that we can get the result as soon as possible. Good morning, everybody. My name is Kishan Kumar. As spoken by other members, obviously
obviously second session is very much important, but in club you will also learn about teamwork. Every week 2 people become the chairperson and they have their test, and so we see a cohesion in people where they form a group and work accordingly. So you will have to practice all this in Manipal also and other banks also, other institutions also. So club also helps us in involving in a good teamwork and group. Good morning everyone, I'm Ashish Mishra and I'm also one of the part of those people of Bank of Baroda Manipal program. What I feel about club is that as sir always say about कि heat बर्दाश्त कर लोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, and that is the best part because अभी we have been seeing that there are many youngsters who are joining as a PO, as a clerk, but they are quitting. They are just switching to private sector, or rather they are shifting from like banking sector to like railway and all. We have many examples, but it's all because that they are not able to survive because of some conditions. It is all that club environment which will help you to survive in the banking industry, and this is the best part about club. अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लोगे, यहाँ पे सर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से अप्लाई करके सर्वाइव कर जाओगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी सर्वाइव करोगे. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो सर बोलते हैं हमेशा एज अ ऑब्जर्वर, एज अ ट्रेजरर रोल जो सर असाइन करते हैं, लेकिन पीपल जो यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा हेडेक होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूचर में मैनेज नहीं होगा. बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये अगर कर लेते हो तो कहीं भी बैंकिंग इंडस्ट्री में जाओ या फिर मणिपाल के थ्रू जाओ, वो बेस्ट पार्ट होगा कि तुम एज अ ग्रुप लीडर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होगा तुम्हारा. तो दीज आर द फ्यू बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लब. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु. मैं भी इस क्लब में था और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो बस इस क्लब के बदौलत ही, क्योंकि ये क्लब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. और अगर मेरा फंडा मानोगे तो यही है कि अगर आपको सक्सेस करना है तो अपने दिल को समझा लो और दिमाग शांत रखो. पेशेंस के साथ ही होगा, कभी हार नहीं मानना है, और जैसा सर बोले वही करते रहिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी आप लोगों को. थैंक यू. चलो तो अब मैं कुछ सवाल उन लोगों से पूछता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. पब्लिकली उम्र तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उम्र पूछना जरूरी है बिकॉज ये करियर से रिलेटेड होगा, है ना. तो चलो हम भी बता देते हैं, फिर पूछने की जरूरत नहीं है. जो मुझे मालूम है, तो एवरेज एज ऑफ दिस ग्रुप जो हमारे सामने खड़ा है, एवरेज ये मुश्किल से 22 साल का है. और अरे का नहीं एवरेज भी मैंने बोला था, मैंने समझा. एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज 22 years, 22 and a half. और बैंकिंग का एक सटीक फॉर्मूला है कि 35 साल की उम्र तक कोई भी विद्यार्थी यदि स्केल 4 तक यानी चीफ मैनेजर तक पहुंच जाता है तो टॉप मैनेजमेंट लेवल में कम से कम 5 से 8 साल वो काम करेगा. टॉप मैनेजमेंट लेवल मीन्स executive director and above. And the beauty of the banking industry is this part only. कि being a normal graduate, you can be the head of the government organization, where your counterpart, let's say from any of the department like income tax or excise, or let's say from Indian Oil, from NTPC, from any other public sector undertakings also, if you see their educational qualification, you will find how much lucky you are. So people join banking for this thing only. It's not only about getting a job as a PO, है ना. सिक्योर्ड हो गया तो भैया स्केल 3 तक जाके रिटायर भी कर जाओ. बहुत ऐसे बैंकर हैं जो PO में ज्वाइन करते हैं और स्केल 3 में जाके खत्म हो जाते हैं. झोला लेके सुबह में निकलते हैं, शाम को झोला लेके आ जाते हैं, सैलरी मिलती है. बट उसी में ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जो आज ग्लोबली बड़े बड़े कंसल्टेंसी में, गोल्डमैन सैक्स, मैकेंजी में काम कर रहे हैं. और ये जो मणिपाल प्रोग्राम चलाया बैंक ने, उसके पीछे इसकी मंशा यही थी कि हमारे बैंकर्स
जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, यदि उसको मैं 9 महीने का मैनेजमेंट इंडक्शन टाइप का ट्रेनिंग दें और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करें अपने इंडस्ट्री में, तो दैट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड बोथ। तो शायद आज हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन 30 साल 35 साल के बाद आप इसी में से कुछ ऐसे चेहरे पेपर में देख सकते हैं या देख पाइएगा, टेलीविजन पे देख सकते हैं कि अरे यार को फलाना आदमी आज इस बैंक का सीएमडी बन गया, आज इसका ईटी है, आज ये दौरे पे आ रहा है बिहार। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इसी मिशन को देखते हुए हम लोगों ने अलायंस का एलुमनाई एसोसिएशन बनाया, जो आपको पता ही है। 12 अगस्त को मैंने पहले बैठक भी बुलाई, लीगलाइज भी किया फॉर्म को, और सारे लोग जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, they are becoming the active member of Alliance Club Alumni Association, and these fellows are going to help you, they are going to handhold you when you are coming to the respective organization, and that is a two-way traffic, and that is going to hold on, आपको पूरा पकड़ेगा, जकड़ेगा, जिससे कि आप सभी का डेवलपमेंट। अरे क्लियर है? तो ये पर्पस है क्लब, संगठन, परिवार। It's not about necessarily coming here, doing a such practice, taking a job and full job. फायदा क्या है? It's about कि आप कितने लोगों को जानते हो, कितने लोगों से कनेक्शन रखते हो, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक सिटिंग मेंबर्स का, एक एलुमनाइज का, दोनों का टू-वे ट्रैफिक अच्छा से चले, इससे सभी लोगों को फायदा आपको मिलता है। और ये इसी साल से स्टार्ट, क्लियर है? और इसका फायदा जितना ओल्डर होगा, पुराना होता जाएगा, उतना ज्यादा फायदा यंगस्टर्स को मिलता है। अरे क्लियर है ना? और ये बात समझ में आपको बता दें कि बहुत ऐसे बैंक के जो मैनेजर हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक के, जिनसे मैं बात मेरी होती है, कुछ हेड ऑफिस में भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो एक संगठन बनाने की बात हुई है, इससे समाज को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और ये भी आपको बता दें, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे रेस्पेक्टिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक के हेड्स हैं जो अलायंस क्लब एलुमनाई एसोसिएशंस को इन प्रिंसिपल दे आर सपोर्टिंग, एंड इवन मेनी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स आर नोइंग अबाउट दिस ब्रांड नाउ। एंड व्हाई? बिकॉज these persons, these fellow are doing better in their respective organization. तो इनके लिए मैसेज बहुत क्लियर है। और जो अभी जाएंगे ट्रेनिंग पर या किसी विभाग में सफल होना है, तो दो चीज हमेशा याद रखिए, आप दिल्ली सचिवालय में काम कीजिए, इनकम टैक्स में काम कीजिए या बैंक में काम कीजिए, बॉस का मैनेजमेंट और कस्टमर फर्स्ट, यही दो ऐसे गुण हैं जिन्होंने सीखा और जिस पर काम किया वो आगे बढ़े। तो नौकरी मिली तो अच्छी बात है, लेकिन नौकरी से परेशान नहीं होना है। ये भगवान से मानिए कि आपके पास काम है, यदि 10 घंटे 12 घंटे आपसे काम करवाया जा रहा है, वही आपका एक्सपीरियंस है और उसी के कारण आप आगे बढ़ो। आज बहुत ऐसे नेशनलाइज्ड बैंकर्स हैं जो पीओ के रूप में 20 साल पहले ज्वाइन किए थे, लेकिन आज बड़े बड़े कंसल्टेंसी और बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी, एंड दे आर अर्निंग अ सैलरी ऑफ 5 करोड़ इन अ ईयर, 7 करोड़ इन अ ईयर। तो यदि आपको व्हाइट मनी कमाना है और ईमानदारी से अपने अहदे को बढ़ाना है, तो बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रूप में लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ये उनका करियर का रास्ता खोल देता है। तो मेहनत करना, जितना हर आदमी थोड़ी ना उस लेवल पे आ जाए। अभी मैंने बोला स्केल 3 में भी रिटायर करेंगे, बट ऐसे बच्चे जो अलायंस क्लब में शिक्षा देने के जा रहे हैं, वैसे लोग इस चीज को समझें। राइटली सेट बाय हिम, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हीट को नहीं बर्दाश्त करते, लगता है बहुत काम है। अरे काम ही तुम्हारी पूंजी है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर? तो